Hello students, welcome in SS Science World. And now in today's molecular biology classes, we will study about some research related with genetic material. So first one जो हमें देखना है that is the Frederick Griffith transformation principle which was given in 1928. And then we will talk about biochemical characterization of genetic material. Then we will talk about DNA as a genetic material. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। आप लोगों को ये चीज क्लियरली नजर आ रही है इसमें स्लाइड में दैट ग्रिफिथ वाज अ साइंटिस्ट एंड he did some researches related to transformation. अब व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। So he worked with Streptococcus pneumoniae. Streptococcus. सबसे पहले we have to find out that what do you mean by coccus. Coccus is some circle-like structure. This is what this is. Monococcus. This one is जब दो coccus combine होंगे they will form diplococcus. Then coccus इस तरह से जब एक chain like structure form करेंगे then they will known as what streptococcus. So streptococcus pneumoniae बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे। और एक स्ट्रक्चर और होता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस क्या होता है, जब ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है यानी कि क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि हमने देखा था, आप लोगों ने देखा होगा ग्रेप्स का जिस तरह से ये इस तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। तो ये कोकस के टाइप्स हैं, मोनोकोकस, then they will combine and form diplococcus, and they will combine, continue and form a chain-like structure which is known as streptococcus, and then clump-like structure is known as staphylococcus. तो हम बात करेंगे streptococcus pneumoniae बैक्टीरिया के बारे में। Okay, now strands of streptococcus pneumoniae, there are two types of strand are present of streptococcus pneumoniae, and these are what? First one is a S strand, and that is also known as smooth strand, and second one is known as rough strand, also known as R strand. So S strand is what? It's a virulent strand, means it cause a disease, and R strand is non-virulent strand and it will not cause disease. So S strand is what? It will form smooth colonies. R strand will form rough colonies. जैसे फ्राइड एग का अपीयरेंस होता है, फ्राइड एग यानी कि इस तरह से स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं होगा, थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया है, रफ स्ट्रैंड। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसको हम रफ स्ट्रैंड कहेंगे, और जो स्मूथ कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर है एकदम स्मूथ, उसे हम कहेंगे एस स्ट्रैंड। ओके, तो S strand will cause pneumonia and R strand will does not cause pneumonia. यहाँ तक क्लियर है? Now we are going to talk about some experiments. So Griffith performed some experiments in his laboratory and find some result, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। He took some S strand and transfer into the mice and observe that mice will die. So mice die हो गया। R strand, he took then R strand in next test tube and transfer into mice, and then what observe, mice will not die. यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे not आएगा, mice will not die. And then he took some heat killed S strand and inject into mice, then what will happen, mice will die. हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब मिक्स किया आर स्ट्रेन के साथ, देन इंजेक्टेड इनटू माइस एंड माइस विल डाई। हीट किल एस स्ट्रेन में माइस विल नॉट डाई, एंड हीट किल एस स्ट्रेन को जब मिक्स किया आर स्ट्रेन के साथ एंड देन इंजेक्ट किया माइस में, देन माइस विल डाई। सो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया। अब उनके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ कि
ये क्या हुआ, ठीक है भाई, एस स्ट्रैंड का तो हमें पता है कि विरुलेंट होता है, ऑब्वियसली ट्रांसफर करेंगे माइस में तो माइस तो डाई होगा। आर स्ट्रैंड नॉन विरुलेंट होगा, ट्रांसफर करेंगे माइस डाई नहीं होगा, सरवाइव करेगा। बट ये भी समझ में आ गया कि एस स्ट्रैंड को हीट किल किया तो उसमें कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से उसने इन्फेक्शन कॉज नहीं किया और माइस जो है वो सरवाइव हो गया। तो पर ऐसा क्या हुआ कि हीट किल एस स्ट्रैंड को जब आर स्ट्रैंड के साथ मिक्स किया तो इंजेक्ट करने पर माइस जो है वो डाई कर गया। तो ऐसा उसमें क्या चेंज हुआ, तो ही कंक्लूडेड दैट द इन फोर्थ एक्सपेरिमेंट ब्लड जो था डेड माइस का, इट हैविंग लिविंग एस बैक्टीरियल जीन which was virulent, वो virulent था and which causes disease. So it is happened because DNA of S bacteria means जो virulent bacteria था उसका DNA ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू एंटर हो गया अनदर सेल में जो कि आर स्ट्रैंड का सेल था, और उस आर स्ट्रैंड के सेल को उसने एस स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया, ड्यू टू विच आर स्ट्रैंड विल कॉज निमोनिया इन माइस एंड माइस विल डाई। तो ये चीज थी कि कैसे क्या हुआ होगा, यानी कि ये मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ यहाँ पर शॉर्ट में, कि जैसे ये बीकर है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो ग्रिफिथ है उन्होंने सबसे पहले लिया हीट किल एसिस्टेंट, हीट किल एसिस्टेंट, हीट किल एसिस्टेंट, हीट जो एसिस्टेंट था वो लिया, हीट किल किया उसे, ठीक है। हीट किल होने से क्या हुआ कि जो उसका जो भी डीएनए मटेरियल था वो डीएनए मटेरियल जो सेल वॉल थी एस स्ट्रेन की वो हो गई पोरस, और उसकी वजह से उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो बाहर की तरफ मूव कर गया। अब मूव करने के बाद क्या हुआ कि जो ये था अपना आर स्ट्रेन जब इसमें इंसर्ट कराया तो आर स्ट्रेन इंसर्ट कराने जब इसमें हमने ऐड किया तो जो ये डीएनए था जो एस स्ट्रेन से रिलीज हुआ था वो आर स्ट्रेन में एंटर कर गया, और उसने इस आर स्ट्रेन को क्या किया फर्दर, इस आर स्ट्रैंड को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया एस स्ट्रैंड में। अब ये एस स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गए और इन्होंने क्या करा, अब ये विरुलेंट हो गए तो विरुलेंट होने की वजह से इन्होंने माइस को डेड कर दिया। तो यहाँ तक चीज क्लियर है आपको सारी की सारी कि किस तरह से क्या हुआ होगा और किस तरह से उन्होंने अपना इफेक्ट शो किया। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे की बात करेंगे कि किस तरह से जो एक्सपेरिमेंट था उसको और फर्दर हमने ऑब्जर्वेशन जो वेरियस साइंटिस्ट थे उन्होंने किया है, तो उसके बारे में भी अब हम बात करते हैं। ये मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें कि हम फर्दर इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जस्ट अ मिनट, लेट्स सी। सो हम लोगों ने बात की कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी कि एस स्ट्रेन जो है वो आर स्ट्रेन, सॉरी आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? तो ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट, इट इज a phenomenon in which DNA is isolated from one type of cell, and when it will introduce into another type of cell, this cell will be able to bestow some of the properties of former। तो जो फॉर्मर जो सेल है पहला वाला जिससे आइसोलेट हुआ है वो डीएनए जब सेकंड सेल में एंटर करेगा तो पहला वाले की जो प्रॉपर्टी थी उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा और वो उसकी प्रॉपर्टी की वजह से उसके जैसा ही हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को बताया जाता है कि संगत में अच्छी संगत में रहिए, अच्छी संगत में रहेंगे तो क्या होगा कि आप अच्छी चीजें सीखेंगे। तो इसी तरह से जो एस बैक्टीरिया था उसने अपनी जो संगत थी उसके साथ आरएनए रहा तो उसकी संगत वैसी हो गई। अगर आप बुरे व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपकी बुरी आदतें आ जाएंगी। उसी तरह से उसकी जो आदतें थी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो एस वाले की जो आदतें थी वो आर में ट्रांसफर हो गई और आर जो था वो भी एक बुरा व्यक्ति बन गया और उसने क्या करा, माइस को मार दिया। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और जेनेटिक मटेरियल के बारे में किस तरह से बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हुए, फर्दर स्टडी हुई। तो तीन साइंटिस्ट और आए, एवरी, मैकलॉयड एंड मैककार्टी। इन तीनों ने
बायोकेमिकल यूज करके बायोकेमिकल आइसोलेट किए, या फिर जो हीट किल एस स्ट्रेन था उसमें जो भी केमिकल्स उनको मिले वो आइसोलेट करके उन्होंने जो केमिकल नेचर था जेनेटिक मटेरियल का उसे कैरेक्टराइज किया, उसे जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या चीज है जो कि ये तो हमें पता है क्योंकि अब डिस्कवरी हो चुकी है, हमें पता है कि डीएनए था, लेकिन अभी इन लोगों को पता नहीं था। तो हीट किल एस स्ट्रैंड में से इन्होंने 3 चीजें आइसोलेट की। पहला प्रोटीन, दूसरा आरएनए और तीसरा डीएनए। तो प्रोटीन जो है वो इन्होंने हम आइसोलेट किस तरह से करते हैं, एसडीएस पेज को यूज करके करते हैं। आरएनए आइसोलेशन और डीएनए आइसोलेशन हम लोग करते हैं आरएपीडी एनालिसिस से। तो जो आरएपीडी एनालिसिस है इसका हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले आता है आर, यानी आरएनए आइसोलेशन कर सकते हैं, और डीएनए डी लास्ट में आता है, मतलब हम डीएनए आइसोलेशन भी कर सकते हैं। इस तरह से ये याद करने का एक तरीका है, ये ट्रिक है जो मैंने आपको बताई कि आरएपीडी किसके लिए यूज होता है, आरएनए और डीएनए के लिए। प्रोटीन के लिए हम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही चीज है एसडीएस, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो प्रोटीन था वो लिया, आर स्ट्रैंड के साथ मिक्स किया, देन इंजेक्ट किया माइस में, दे विल ऑब्जर्व माइस विल लाइव। फिर इन्होंने आरएनए लिया, आरएनए को आर स्ट्रैंड के साथ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मिक्स किया, माइस में इंजेक्ट किया, ऑब्जर्व किया, माइस तो जिंदा है। देन डीएनए के साथ इन्होंने डीएनए लिया, डीएनए के साथ इन्होंने आर स्ट्रैंड को मिक्स किया और माइस में इंजेक्ट किया। तो अब इन्होंने देखा कि क्या हुआ है, माइस जो है वो डाई कर गया है, यानी कि माइस विल डाई। तो इनको पता चल गया कि हाँ इसका मतलब ये है कि डीएनए जो है वो ही जेनेटिक मटेरियल था जिसने कि कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से जो आर स्ट्रैंड है वो एस स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन फिर भी उनको लगा कि नहीं, हमें क्रॉस चेक और करेंगे, क्या पता कुछ हमसे मिस हो गया हो। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने जो है एस स्ट्रैंड को मिक्स किया प्रोटीज एंजाइम के साथ। पहले तो प्रोटीन ले रहे थे, आर स्ट्रैंड को मिक्स कर रहे थे। अब इन्होंने एस स्ट्रैंड लिया और एस स्ट्रैंड के साथ इन्होंने क्या डाला, प्रोटीज। प्रोटीज डालने पे जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो क्या हुआ, माइस लाइव था, सरवाइव कर गया। फिर इन्होंने एस स्ट्रैंड लिया और उसके साथ एस स्ट्रैंड में कौन सा केमिकल डाला, आरएनएस। जब आरएनएस डाला तो आरएनएस क्या करता है, आरएनए को डिग्रेड करता है, प्रोटीज प्रोटीन को डिग्रेड करता है। यानी जब प्रोटीज यहाँ डाला तो प्रोटीन डिग्रेड हुआ, लेकिन जो आर स्ट्रैंड था वो एस स्ट्रैंड में कन्वर्ट नहीं हुआ, सॉरी कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसने प्रोटीन को डिग्रेड किया। तो डीएनए कुछ तो ऐसा प्रेजेंट था जिसने आर स्ट्रैंड को क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आरएनएस डाला तो आरएनएस ने आरएनए को डिग्रेड किया। तो यानी अब किसमें, इसमें क्या है, प्रोटीन है और डीएनए है। तो अब क्या हुआ कि अब आर स्ट्रैंड जो है अभी भी वो एस स्ट्रैंड में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इनको लगा नहीं अभी भी कुछ ऐसा है, तो इन्होंने नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में एस स्ट्रैंड के साथ ऐड किया डीएनएस। डीएनएस ने क्या किया, डीएनए को डिग्रेड किया। तो डीएनए डिग्रेड होने के कारण क्या हुआ, अब जो एस आर स्ट्रैंड था वो एस स्ट्रैंड में कन्वर्ट नहीं हुआ, सॉरी कन्वर्ट नहीं हुआ। तो कन्वर्ट नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, उनको पता चल गया कि डीएनए ने जो है डीएनए को डिग्रेड किया, यानी डीएनए ही वो चीज है जो कि एस स्ट्रैंड से आर स्ट्रैंड में कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म हो रही है और उसको आर को क्या बना रही है, एस स्ट्रैंड बना रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और किस तरह से उसमें वर्क हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि आर स्ट्रैंड जो है वो एस स्ट्रैंड में किस तरह कन्वर्ट हुआ। सबसे पहले क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्रोटीन डाला, प्रोटीज डाला एस के साथ, यानी प्रोटीज ने क्या करा, एस स्ट्रैंड के प्रोटीन को डिग्रेड किया। तो क्या हुआ, आर स्ट्रैंड एस में कन्वर्ट हो गया, यानी जो ये एस वाला एस का जो कुछ ऐसा प्रेजेंट था उसमें जिसने आर को क्या किया, एस में बना दिया, यानी कि माइस जो है वो डाई हो गई। फिर सेकंड में आरएनएस डाला तो आरएनएस ने आरएनए को डिग्रेड किया। अब भी क्या हुआ कि ये विरुलेंट बन गया और इसने क्या करा, माइस को डाई कर दिया। अब नेक्स्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट में जब डीएनएस डाला
तो डीएनएज ने क्या किया, डीएनए को डिग्रेड किया, और डीएनए को डिग्रेड करने के कारण अब आर स्ट्रैंड एस में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो क्या रहा, आर का आर ही रहा। आर का आर ही रहने से वो माइस को उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ हार्म नहीं पहुंचाया। यानी माइस क्या कर गया, सरवाइव कर गया। माइस सरवाइव कर गया, इसका मतलब ये है कि डीएनए जो था वो डिग्रेड हो चुका है, और डीएनए ही वो चीज है जो क्या कर रहा था, आर को गलत बातें सिखा रहा था और वो एस में कन्वर्ट कर रहा था। यानी वो डीएनए ही था जो उसे गलत बात सिखा रहा था। ठीक है, तो यानी कि प्रॉपर्टी किस में थी, डीएनए में थी। अब डीएनए डिग्रेड हो गया तो माइस क्या कर गया, सरवाइव कर गया। ठीक है, तो आर स्ट्रैंड जो है वो एस में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब चीजें क्लियर होंगी। और हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बात की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है, इट्स अ साइंस विच we will study about molecular structure inside the biological system। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम डीएनए के बारे में बात करेंगे, आरएनए के बारे में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट प्रोटीन, and then we will talk about structure of DNA, RNA and protein. Then we will talk about DNA replication, transcription and translation. So ये चीज आप लोगों को माइंड में ध्यान रखनी है। You should keep this into your mind that the basic pillars of molecular biology are DNA replication, transcription and translation। तो replication, transcription, translation are the main pillar जिनके इर्द गिर्द पूरा molecular biology basically पूरा मूव करता है। तो जो भी हम पढ़ेंगे इसमें उन तीनों डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बारे में ही बेसिकली हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। जिस तरह से लिविंग बीइंग जो है वो दे विल मेक आवर कॉपीज। सो एक बैक्टीरिया, one bacteria it will convert into two bacteria, then two will convert into four bacteria, four will convert into eight। इस तरह से फर्दर मोर वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया अपनी कॉपीज को इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है। वो डीएनए और आरएनए अपनी कॉपीज को इंक्रीज करते हैं और लाइफ को, मतलब जो सेल है उसको इंक्रीज करेंगे, सेल नंबर को इंक्रीज करेंगे बाद में। तो सेल डिवीजन में हम यही पढ़ते हैं कि पहले न्यूक्लियस डिवीजन होता है, उसके बाद सेल डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियस भी डिवीजन हो रहा है, तो एक न्यूक्लियस से जब दो न्यूक्लियस बनेंगे तो दोनों में इक्वल अमाउंट का डीएनए जाए। तो ये क्यों होगा, क्योंकि उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज व्हाट, डीएनए फॉर्म इट्स कॉपीज, मेनी कॉपीज, तो वो डीएनए एप्लीकेशन करवाएगा, कहा जाएगा। और जब आरएनए विल फॉर्म इट्स कॉपीज इट विल नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। फिर ट्रांसक्रिप्शन से फर्दर हम स्टडी करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हमने नाम दिया ट्रांसलेशन। वेरियस टाइप्स के एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम्स आते हैं वो उनके बारे में हम बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम्स आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आगे। प्रोटीन सिंथेसिस में भी कुछ जो है एंजाइम्स यूज में आएंगे, वो हमें देखना है। तो इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, इनकी थ्योरीज के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से थ्योरीज आई। और हम लोगों ने जो बात करी है अब तक वो डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम देख चुके हैं। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज राइबोज शुगर होती है, और आरएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर होती है। तो ये भी हम देखेंगे कि राइबोज शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज में किस तरह से कन्वर्ट हुई। फिर हम बात करेंगे कि हम लोगों ने मतलब बात की है कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस यूज में आएगा थाइमिन, और जो आरएनए है वहाँ यूरेसिल हो जाएगा। तो जो एडेनिन नाइट्रोजन बेस है वो डीएनए में पेयर करेगा थाइमिन के साथ, और आरएनए में पेयर करेगा यूरेसिल के साथ, डबल बॉन्ड करेगा। ये इतनी बात हम लोग कर चुके हैं। नाउ फर्दर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो चीज़ें स्टडी करेंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बात करेंगे आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में।
टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम लिंक भी नीचे सेंड कर दूंगी, यू कैन ज्वाइन मी देयर। और जो भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स वहाँ पे आप लोग को अवेलेबल मिल जाएंगे। टेलीग्राम के जो ग्रुप है हमारा SS साइंस वर्ल्ड, उसमें यू कैन ज्वाइन देयर एंड you will find all the notes there. So till then, happy learning and enjoy learning.